नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दर्शन विद्यालय रतनपुर तरफ आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। ગયા તાસની અંદર આપણે દાજુ જે શેખર જોશીની એક કહાની હતી એના વિશે આપણે વાત કરી હતી, એટલે કે દાજુ એટલે કે મોટો ભાઈ। આજે આપણે भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में आज हम देखने वाले हैं, यानी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह कैसी थी, उसमें गुरु शिष्य का संबंध कैसा था, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। उसके पाठ के आधार पर हम पहले गुजराती के माध्यम से हम देखते हैं कि क्या आता है। क्योंकि पाठना आधारे मैंने जो मैं मुद्दा लाया है कि पहले विद्यालय मंदिर के समान आज की स्थिति, भारतीय का स्वभाव, पत्रकार को गामा पहनना का उत्तम शिष्य मिलना बहुत मुश्किल, गुरु शिष्य में जाति धर्म का स्थान, सेवा लेने की नहीं देने की वस्तु है, ऐसे पाठ के साथ यहाँ पे निकलते हैं। तो पहला जो पाठ का सार है कि पहले विद्यालय मंदिर के समान था। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પહેલાના જમાનાની અંદર એટલે કે થોડા સમય પહેલા અમુક વર્ષો પહેલા આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ કેવી હતી, એના અંદર જે વિદ્યાલય એટલે કે જે શાળા હતી, શાળાને મંદિર સમાન માનવામાં આવતી। આપણે આજે પણ મંદિર માનીએ છીએ, પણ ખરેખર માનીએ છીએ આપણે ખુદને પૂછો નથી માનતા। તો પહેલાના જમાનાની અંદર વિદ્યાલયને મંદિર સમાન માનવામાં આવતું, બધા તેની પૂજા કરતા। પહેલા શિક્ષણ એ વ્યવસાય માટે નહોતું, तेरे शिक्षण एक प्रभु ने प्राप्त करवा माटे, प्रभु ने मेळववा माटेनुं एक माध्यम हतुं। ज्यारे आजना युगनी अंदर आजनी स्थिति केवी छे के पश्चिमनी जे संस्कृति छे ते आपणा भारतनी अंदर आवी गई छे अने आजे एक शिक्षण ने व्यवसाय स्वरूपे गणी लीधुं छे। एक शिक्षण वेतन भोगी बनी गयो छे के पोतानुं जे पेट छे ए शिक्षणना आधारे भरे छे। ए ज रीते शिष्य छे ए પહેલાના જમાનાની અંદર શિક્ષા મેળવવા માટે કોઈ પૈસા આપવામાં નહોતા આવતા કે શિક્ષા મેળવવી છે તો પહેલા પૈસા આપવું નહોતું। આજે એવું રહ્યું નથી, પહેલા પૈસા આપો પછી શિક્ષણ, એવી આજની સ્થિતિ થઈ ગઈ છે। અને આપણા ભારતીય જે માણસો છે આપણા ભારતના, એ માણસોનો સ્વભાવ કેવો છે કે આપણા ભારતની અંદર એવી સંસ્કૃતિ છે જે બીજા એક દેશની અંદર નથી, છતાં પણ આપણે તેનો સ્વીકાર કરતા નથી। એનો સ્વીકાર ક્યારે કરીએ છીએ જ્યારે એ વિદેશની અંદર પ્રતિષ્ઠિત થાય છે, એને વાહવા થાય છે, ત્યારે આપણે તેનો સ્વીકાર કરીએ છીએ। જે રીતે સ્વામી વિવેકાનંદને જ્યારે વિદેશની અંદર એનું સન્માન કરવામાં આવ્યું ત્યારે આપણે એમને સ્વીકારાય। એવી જ રીતે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર જે છે એમને જે પુરસ્કારો મળ્યા એના પાસે એમને સન્માન મળ્યા, એના પાસે એમને બધાએ સન્માન કર્યું। એ રીતના આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર ભરતનાટ્યમ છે, કથકલી જે નૃત્યો છે એ નૃત્યોને પહેલા કોઈને ખબર નથી, પણ જ્યારે વિદેશની અંદર એની વાહવા થવા માંડી, એનો આદર માન થવા માંડ્યું ત્યારે આપણે તેનો સ્વીકાર કર્યો કે આપણે ભારતની અંદર પણ આવી સંસ્કૃતિઓ છે। તે તો માણસ ભારતના સ્વભાવ કેવો છે, ભારતના લોકોનો સ્વભાવ કેવો છે કે પહેલા વિદેશમાં વગણાય તો જ આપણે સ્વીકાર। આજે ભારતના માણસોને અમેરિકા, જર્મની એટલે કે વિદેશોમાં જવું એક સ્વર્ગ સમાન લાગે છે। આવો भारतीय स्वभाव से जયારે पत्रकार को गामा पहलवान का उत्तर एक पहलवान गामा नामનો एक पहलवान હતો। प्रश्न पूछी शकाय कि गामा कौन था, तो गामा एक पहलवान था। तो कि गामाए मुंबईની અંદર જઈ વિશ્વના દરેક પહેલવાન સામે પડકાર નાખી છે કે મારી સાથે લડે। ત્યારે એક પત્રકાર એમને એવું કહે છે કે તમે બધાને પડકાર આપો છો તો પોતાના અમુક શિષ્યોને પસંદ કરી એની સાથે તમે પહેલવાનગીરી કરો। ત્યારે ગામા પહેલવાન કહે છે કે તમે જેની વાત કરો છો ને તે મારો શિષ્ય છે, તે મારો સ્ટુડન્ટ છે, તેની સાથે હું મુકાબલો ના કરી શકું, કારણ કે હું લડું કે એ લડે બંને એક સમાન છે। એ મારા પુત્ર કરતા પણ વધારે છે, કારણ કે એની પ્રતિષ્ઠા, એની કીર્તિ મારા કરતા પણ વધારે થાય એવું હું ઈચ્છું છું। આગળ વધતા उत्तम शिष्य मिलना यानी कि आजना युगनी अंदर एक सारो स्टूडेंट, एक सारो विद्यार्थी मळवो घणो मुश्किल छे। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जेवा शिष्यने मेळववा माटे पण प्रार्थना करता हता। जे यीशु ख्रिस्त छे ए पण પોતાના અનુયાયીઓને પોતે આગળ વધે એના
એના માટેનું માર્ગદર્શન આપતા હોય છે. ગુરુ શિષ્ય જે ગુરુ હોય છે એ પોતાના શિષ્યોની જાતિ ભેદભાવ ક્યારે રાખતો નથી. એ બધા વિદ્યાર્થીઓને સમાન ભાવથી જોતો હોય છે અને બધા માટેનું સ્થાન એક જ હોય અને એના દિલની અંદર હોય છે. એ જ રીતે पहलाના જમાનાની અંદર સેવા લેના નહીં સેવા દેના ऐसा कहते थे. એટલે કે સેવા જે ગુરુ હોય છે એ સેવા લે એ સેવા આપે. તો અહીંયા પણ અત્યારનો યુગ એવો છે કે સેવા લેવામાં જ અમુક ધર્મગુરુને એવું માને છે, પણ ખરેખર સેવા લેવાની ન હોય, સેવા આપવાની હોય. આટલી બાબતો આજે આપણે हिंदी અંદર भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का जो संबंध है उसके अंदर हम आज ये सारी बातें करेंगे, जिसके लेखक का नाम है आनंद शंकर माधवन. आनंद शंकर माधवन, श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के बीकानेर जिले में हुआ था. डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए. महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा है. जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया है. वह जेलवास भी कर चुके हैं. जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की. सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की. अब तीनों संस्थाओं के संचालक है. मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं में पूर्ण अधिकार होने पर बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि के यानी कि हिंदी के अलावा दो भाषा वह जानते थे, फिर भी वह हिंदी साहित्य में सृष्टि यानी कि लिखना शुरू करते हैं. आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बहुमूल्य है. यानी कि जे ने कलमो लखी છે, જે ને રચનાઓ કરી છે એની અંદર દાર્શનિકતા, આધુનિકતા એવं આધ્યાત્મિકતા જોવા મળે છે. बिक्री हिरे, अनलस लाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि उसकी प्रमुख रचनाएं हैं. आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा किए गए पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं. इस कहानी में आज हम जो देखने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं. माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से कारांश व्यंग किया है. यानी कि આજની જે શિક્ષણ નીતિ છે, આજનો જે શિક્ષણ પ્રણાલી છે, જે શિક્ષણનો જે વ્યવહાર છે એના ઉપર એક પ્રકારનો વ્યંગ કરેલો છે, જે પ્રાચીન ગુરુ શિષ્યના સંબંધ સાથે સરખાવ્યો છે. हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति का बोलबाला है. आज हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में व्यवसायिक जो शिक्षण प्रणाली है समाज के अंदर वह आज व्यवसायिक संस्कृति की बोलबाला हो गई है. इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया हुआ है. पहले के जमाने में जो गुरु शिष्य का संबंध था, आज के जमाने में ऐसा गुरु शिष्य संबंध नहीं रहा, परिवर्तन आ गया है. ऐसा आनंद शंकर ध्रुव कहते हैं, आनंद शंकर माधवन कहते हैं. पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे. शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, पर परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था. यानी कि परम सुख प्राप्त करने के लिए शिक्षा दी जाती थी पहले के जमाने में. आज ऐसा नहीं है. आज उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जा सकती थी. क्या आज वैसी स्थिति है? ऐसा क्वेश्चन माधवन जी हमें करते हैं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है. लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है. એટલે કે આપણને સોચવા માટે મજબૂર કરી દીધા કે શું ખરેખર આજે પહેલાના જમાનામાં જેવું શિક્ષણ નીતિ હતી, જેવું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું, જે શિક્ષણ માટે ફી નતા લેતા, શિક્ષણને એક પ્રભુને પ્રાપ્તિ માટે એટલે કે સુખ પ્રાપ્તિ માટેનું એક સાધન માનતા હતા, ખરેખર આજે એવું છે? એના ઉપર આપણે વિચાર કરવાનું કહે છે. देखते हैं हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति की बोलबाला है. हमारे समाज में किसकी बोलबाला है? व्यवसायिक संस्कृति. खाली जगह या एमसीक्यू प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति की बोलबाला है. बोलबाला यानी कि प्रचलन. यहाँ पे मैंने लिखा है बोलबाला यानी कि प्रचलन. इसी कारण गुरु शिष्य
में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। पहले के जमाने में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। पहले के जमाने में जो गुरु शिष्य का जो संबंध है वह पूजनीय था। शिक्षा देने का आध्यात्मिक अनुष्ठान तब था। परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम, एक शिक्षा थी। शिक्षा खरीदी नहीं जा सकती थी, आज के जमाने में खरीदी जा सकती है। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब शिक्षण प्रणाली पेट पालने का माध्यम बन गया है। जिस भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यवसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो रहा है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को भी शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह प्रिय विक्रिय पद्धति निस्संदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। इस जो फी लेके जो शिक्षा देना है वह भारतीय संस्कृति की जो प्रणाली है ऐसी नहीं थी। आज ऐसी प्रणाली बन चुकी है। यूरोप के जो देश है उससे ले गई है। शिक्षा प्रणाली एवं एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थी। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही माना जाता था। जो गुरु है उसे परमेश्वर ही माना जाता था। पहले के जमाने में फी नहीं दी जाती थी, गुरु को परमेश्वर के समान माना जाता था। जो शाला थी, स्कूल थी, विद्यालय थी उसे आश्रम या मंदिर माना जाता था। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। यानी कि शक्ति पाने का रहस्य क्या है? सम्मान मिलना। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। उनका माध्यम क्या था? शिक्षा का। परमेश्वर प्राप्ति का उसका माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है। जो परमेश्वर प्राप्ति का जो माध्यम था वह आज पेट पालने का माध्यम बन गया है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, और जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े वह राग अलापते हुए। अमादेव ठाकुर सपूत दक्षिण भारत में कुछ समय पहले एक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे भारतीय संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज भी पड़ी थी क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायती जाना स्वर्ग जाने जैसे अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना, गद्दे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयासी हो सकता है। तो हमने देखा कि भारतवासियों का स्वभाव कैसा है। भारतवासी अपनी संस्कृति को नहीं पहचानते, अपनी संस्कृति को नहीं स्वीकारते। हमारी जो संस्कृति है अन्य संस्कृति के समान बहुत बड़ी है। विदेशों की जो संस्कृति है वह तो छोटी है, लेकिन हमारी संस्कृति का जो विस्तार है बहुत ही विख्यात है। लेकिन हमारे जो भारत के जो लोग हैं वो उनका स्वभाव कैसा है? जब तक वह विदेश में प्रख्यात नहीं होती तब तक हम उसे स्वीकारते नहीं। विवेकानंद ले लो, रविंद्रनाथ ठाकुर ले लो, उसी प्रकार भरतनाट्यम कथकली को ले लो। लेकिन जो विदेश का जो जर्मनी का एक मैक्स मूलर है वह जीवन भर प्रार्थना करता था कि मैं भारत में निवास करूं। वो जो विदेश के लोग जो भारत में आके निवास करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत के हैं। फिर भी आज के हमारे जो लोग हैं वह जर्मनी अमेरिका जाने में वो स्वर्ग का अनुभूति करते हैं। ऐसे लोगों को शिक्षा देना यानी कि गुरु शिष्य समझाना महत्व नहीं है। जैसे को गद्दे को गणित सिखाने जैसा हो जाता है। यानी कि अज्ञात व्यक्ति को ज्ञान देना व्यर्थ प्रयास होना है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवान को
कुश्तियों में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकता वंश उनके निकट पहुंचकर उनमें पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही पूछा, लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंग नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों में हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निज यानी कि अपना रहन सहन है। शायद इससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के का आप नाम ले रहे हैं वह मेरा शिष्य है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है उससे। इसमें और मुझमें फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ता यहाँ वह लड़ा, मैं लड़ूं या वह लड़े, दोनों बराबर ही है। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावित रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया है उससे भी अधिक मेरे शिष्य नाम कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। जब गामा पहलवान को पत्रकार ने एक क्वेश्चन किया कि आप सारे विश्व के पहलवान से लड़ना चाहते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपने ही शिष्य से लड़ाई करें और जीते, अपना जो बल है वह अपने शिष्यों के सामने प्रदर्शित करें। लेकिन गामा पहलवान कहता है कि आप हमारे भारतीय संस्कृति को पहचानते नहीं, आप खरेखर हिंदुस्तानी नहीं है। तो आप भारतीय संस्कृति जानते तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करते। जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह मेरा शिष्य है, वह मेरे पुत्र से भी अधिक प्रिय है। वह लड़े या मैं लड़ूं, कोई फर्क नहीं है। जितनी कीर्ति मैंने प्राप्त की है, मेरे से भी अधिक कीर्ति वह मेरे शिष्य प्राप्त करे। ऐसा गुरु शिष्य संबंध हमारे भारतीय संस्कृति में है। आज के भारतीय संस्कृति में जो कोई गुरु शिष्य का संबंध जहाँ पे दिखाई देता है तो वह सिर्फ पहलवान में और साथ ही साथ संगीतकार में दिखाई देता है, अन्य कहीं नहीं दिखाई देता। ऐसे पहलवान जो पत्रकार है उसे कहता है कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। आगे बढ़ते, भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों, संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों युग शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रोकर प्रार्थना करनी पड़ती थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें बहुत दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इसी संबंध में हेवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उसे झुटिया होने की योग्यता भी मुझसे नहीं है। यही बात है गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी है। विवेकानंद से उन्हें पसंद आएंगे जिन्हें विवेकानंद बनने की अनुभूति सबके निहित है। आगे बढ़ते, उत्तम शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। आज के युग में एक उत्तम शिष्य मिलना बहुत ही मुश्किल है। जो रामकृष्ण परमहंस है और उत्तम शिष्य खोजने के लिए वह भी प्रभु से प्रार्थना करते थे कि मुझे उत्तम शिष्य मिले, तभी उनको विवेकानंद जैसे शिष्य मिलते हैं। उसी प्रकार जो यीशु ख्रिस्त है वह अपने अनुयायी को भी अपने से अधिक महत्व देते हैं। ऐसे गुरु शिष्य, ऐसे शिष्य मिलना, आज उत्तम शिष्य मिलना बहुत ही कठिन है। ऐसे आज हम देखते हैं कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि के अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। रसास्वादन यानी कि आनंद लेते हैं। यहाँ पूज्य नहीं है, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में दुनिया में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वह हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अनुभूति भारतीय व्याख्यान अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पंथ के यात्री है।
आगे बढ़ के गुरु शिष्य में जाति धर्म का स्थान नहीं है। हमारे जो जितने भी गुरु पूर्व में हो गए वह जाति धर्म की मानते नहीं थे। जितने भी शिष्य आते वह सभी शिष्यों को ज्ञान देते थे, वह जाति भेद नहीं करते थे कि इस जाति का तो इसे शिक्षा नहीं देनी, ये गरीब है तो इसे शिक्षा नहीं देनी, अमीर है तो दो, ऐसा कभी भी गुरु नहीं करता। तो गुरु शिष्य में जाति धर्म का स्थान नहीं होता। उत्तम गुरु की जाति भावना भी नहीं हो रहती। जो उत्तम गुरु होता है उसके अंदर जाति भावना नहीं रहती। कितने भी मुसलमान पहलवानों को हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं, लेकिन जिन पहलवान जिसे हम पहलवान कहते हैं, पहलवान के शिष्य भी हिंदू है और संगीतकारों के जो शिष्य मुसलमान भी है। यानी कि जाति भेद में जो उत्तम गुरु है वह जाति भेद में नहीं मानता। यहाँ परख गुण की साधना की और प्रतिभा की होती भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है। यानी कि जो साधना है वह प्रतिभा की साधना है, साथ ही साथ भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत यहाँ की जाती है, न कि जातीय संप्रदाय की, आचार विचार का, धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामाणी होते थे। मौलवी यानी कि दूसरी ज्ञाति के लोग रामाणी एक लेके राम की कथा सुनाने वाले को हम रामाणी कहते हैं। तो अलग जाति के लोग भी रामाणी सुनाते थे, यानी कि राम की कथा सुनाते थे। आज देहांतों में भरत मियाँ, रजत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति भी हिंदू के जो ग्रंथ है वह पढ़ाते हैं, वो कहते हैं, कहानी सुनाते हैं। यानी कि उत्तम गुरु के बीच में एक शिष्य की जाति धर्म का स्थान नहीं रहता। आगे बढ़ के सेवा लेने के लिए देने की बात होती है तो आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने के लिए ही चतुर है। आज के जो गुरु है वह सेवा लेने के लिए पैदा होते हैं, ऐसा लगता है देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्य ने कहा है, यानी कि उपनिषदों में आचार्य ने कहा है कि सेवा देने की चीज है, लेने के लिए। उपनिषद में आचार्य ने कहा है कि सेवा लेने की चीज नहीं है, देने की चीज है। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ लेना चाहिए। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता, सहृदयता देखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की ही शक्ति उतनी मात्रा तक की संभवित है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी भी भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। तो आज हम देखते हैं कि सेवा, आज के गुरु सेवा लेने में ही मानते हैं। देने ऐसा कहा गया है कि सेवा लेने के लिए नहीं होती, सेवा देने के लिए होती है। लेकिन आज के जो धर्म गुरु है वह सेवा लेते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा सार जरूर से ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। तो आज हमने पहले विद्यालय में मंदिर, जो पहले विद्यालय थे वह मंदिर के समान माने जाते थे, यानी कि पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे, वहां पे पूजा की जाती थी। गुरु शिष्य के संबंध में आगे हम बढ़ते तो आज की स्थिति क्या है, तो कि पहले के जमाने में गुरु शिष्य संबंध को पवित्र माना जाता था। शिक्षा देना एक परमेश्वर को प्राप्त करना, एक सुख प्राप्त करने जैसा था। शिक्षा व्यापार नहीं था, लेकिन आज की स्थिति में शिक्षा एक कैसा बन गया, व्यापार बन गया है। पहले के जमाने में गुरु शिक्षा देने के साथ ही जो शुल्क नहीं लेते थे, लेकिन आज के व्यवहार में एक शिक्षा व्यवसायिक संस्कृति बन गया है, संस्कृति की बोलबाला बन गया है। आज आगे बढ़ते तो भारतीय संस्कृति की स्वभाव कैसा है, तो वह भारतीय संस्कृति का जो स्वभाव है वह अपनी संस्कृति को पहचानता नहीं है, वह विदेशों की जो संस्कृति है उसे पहचानता है। जब तक विदेशों में अपनी संस्कृति प्रख्यात नहीं होती, विस्तार नहीं होती, तब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने जब अमेरिका में अपना नाम कमाया, उसकी वाहवाही वहां पे हुई, तभी हमने यहाँ पे उसके सम्मान की आवश्यकता कर। रविंद्रनाथ टैगोर से भरतनाट्यम कथकली भी आती है। पत्रकार गामा को पहलवान का उत्तर
ब्राह्मण ने कह दिया कि आप हिंदू नहीं है, हिंदू होते तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करते। एक गुरु अपने शिष्यों को पुत्र के समान मानता है, उससे लड़ता नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच अपनेत्व का संबंध होता है। जो शिष्य है वह गुरु से भी अधिक पढ़े, ऐसा परिणाम कहता है, यानी कि गुरु समझता है। उत्तम शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है, यानी कि जो उत्तम शिष्य है वो आज मिलना मुश्किल है। उसी प्रकार जो शिष्य की जाति धर्म का स्थान नहीं, जो उत्तम गुरु है उनके बीच जाति धर्म का स्थान नहीं है। सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा देने के लिए होती है। कि उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि सेवा लेना नहीं, सेवा देने के लिए होती है। लेकिन आज की गुरु जो है सेवा लेने भी चाहते हैं। तो आज हम भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध आज में हम पढ़ेंगे। और आपको गृह कार्य में जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय आपको घर बैठते हुए क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इतने क्वेश्चन आप सभी को लिखने हैं अपनी नोटबुक में। अस्तु।